Hi students, morning, and let us now today complete the topic of area related to circles. Though this topic will not be completed right now, of course, जो main topic है आज मैं करवा दूंगा, but of course there are a lot of questions. So as I told you guys that influence की book right over there है, तो of course we'll be doing a lot of questions, but वो एक साथ नहीं दे सकता because there will be more than around 400 and 500 questions from this chapter. So I'll be giving you gradually say 40, 40, 50, 50 करके आपको questions होगा. So I have written around 4 questions which are kind of from easier to medium level. Okay. Now, before I start, and complete this topic, let us first of all understand certain formulas and meanings of certain terms जो आज के इसमें काम में आएगा. So I am writing the formulas and then I'll be rubbing the board. So first formula is area of the circle. आप बोलोगे तो सर ये तो करवा दिया, of course. Pi r square. Then comes area of semicircle. Area of semicircle. अब semi का मतलब ही होता है half. So that means half into pi r square where r is the radius. Then comes circumference of circle. Circumference of circle, it should be equals to 2 pi r where r is the radius. Circumference of semicircle, and it should be equals to कितना हो जाएगा. सपोज कर लो ये है मेरे पास में एक सर्कल and this is your r and this is your radius and radius, so it is going to be r plus r and plus circumference of the semicircle, sorry, so it is not going to be something like this. Let's rub it off. So if this is the center, that is O, so this has to be R, this has to be R. So it will be R plus 2 pi R by 2. Or it should be equals to 2R plus 2 pi R by 2. 2 and 2 cancel. Or this will be 2R plus pi r by 2, or it should be equals to r common taken outside, that is 2 plus pi by 2. And don't try and cut this with this, okay? Now let's move ahead with the next formula. So ये तो semicircle का था. अब हम बात करेंगे आज कुछ एक नए टॉपिक के बारे में. So I'm just going to rub off this part. So मैं डायरेक्टली इसको यहीं लिख देता हूँ, which is r into 2 plus pi by 2. So it is r into 2 plus pi by 2. Oh. Let's check once again ये कैसे आया था. r into 2 is 2r, that is r, plus r, that is 2r, plus 2 pi r by 2, क्योंकि 2 pi r सर्कल का circumference होता है. So it will be 2 pi r by 2, correct? So यहाँ पर ही आ जाएगा आपके पास में 2r plus hold it, that is 2r plus 2 pi r by 2. अभी इसको ऐसे लिखा हुआ छोड़ देते हैं, बाद में जब भी कभी क्वेश्चन आएगा then we'll take out comment. Okay, now so ये आ गया semicircle के लिए. Now today we'll be talking about new term which is known as sector of the circle. Now let's understand. Suppose if this is a circle, लग नहीं रहा मुझे मालूम है. Now this is O. So जो भी पूरा का पूरा वाला आपका सेक्शन आता है, जो शेडेड रीजन आएगा, दिस इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल. सो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल. व्हाट इज द फॉर्मूला? लेट अस सपोज कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कुछ थीटा का. सो फॉर्मूला होता है आपके पास में, that is pi r square into theta upon 360. So what is the formula? Pi r square, because circle का area ही pi r square होता है. अब आपको केवल इतने से सेक्टर के लिए निकालना है. So that is theta upon 360. 360 क्यों लिया? Because total circle 360 का ही बनता है. इसी का एक और फॉर्मूला आता है circumference, उसी को हम लोग लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं. length of arc
for sector of a circle. Now length of arc का मतलब क्या हुआ? सपोज कर लो मुझे केवल यहां से यहां तक का ये कर्व्ड डिस्टेंस मेजर करना है। अब ये कर्व डिस्टेंस कैसे मेजर करूंगा? तो वेरी सिंपल, द फॉर्मूला इज 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। अब लर्न करने का तरीका बहुत ही सिंपल, जब भी एरिया आएगा तो आप क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है तो क्या करोगे? 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। ओके, नाउ अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे विच इज नोन एज सेगमेंट। यदि आपने इस कॉर्ड को यहां से यहां ज्वाइन कर दिया, ओके, तो ये वाला जो रीजन बचता है, जो नीचे वाला जो रीजन बचेगा, दिस इज नोन एज व्हाट? द माइनर सेगमेंट। ये जो नीचे का जो क्रॉस क्रॉस बना करके किया हुआ है, दिस इज नोन एज द माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब कॉमन सेंस लगाओ, यदि कभी किसी ने पूछा नहीं मुझे तो केवल इतने सेक्शन का एरिया फाइंड करना है, तो क्या करोगे? वेरी सिंपल, सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर दोगे। किसको? ट्राइंगल के एरिया को। सो व्हाट इज द सर्कल का एरिया? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल? दैट इज हाफ b into h. So please understand guys, area of the minor segment should be equals to what? मतलब यदि केवल मुझे इसका निकालना है, so that is area of the sector, बल्कि यहाँ पर एक गड़बड़ी कर दी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है तो इसका मतलब है एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा। सो लेट्स राइट इट, एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा? इट कैन बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है बेस और हाइट? कुछ नहीं, यदि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और एल्स एक और सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। गाइस ये शॉर्टकट ट्रिक है। यदि आपको केवल इसका एरिया निकालना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? द सेंट्रल एंगल होता है हमेशा, करेक्ट। दो यदि आपको ये यूज नहीं करना है और आपको नॉर्मल बड़े मेथड से करना है तब भी आंसर आ जाएगा। सो लेट मी टेल यू, ये तो हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे? दैट इज जो भी आपका आंसर आएगा सर्कल के एरिया में से ये वाला सेगमेंट माइनस करना और आंसर आ जाएगा। जब क्वेश्चंस आएंगे तो ऑफ कोर्स आई विल टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस पार्ट एंड देन अंडरस्टैंड आखिर ये फॉर्मूला कब क्यों कहां पर काम में आता है। ओके, नाउ लेट्स सी। So let us read the first question or the first problem. The first problem says find the area of the shaded region. Now can you see a shading? Of course yes you would. That is this is a rectangle. इसमें ये 18 है, ये 14 है, तो common sense ये भी 14 होगा और ये भी 18 होगा। ये क्वेश्चन काफी बड़ा दिया हुआ था, मैंने जस्ट केवल फिगर एंड ऊपर लिख दिया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इट वाज बीइंग गिवन दैट दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, अब आपको इसका शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। कैसे करोगे? सिंपल, टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ व्हाट? सेमी सर्कल। वो भी गिवन दिया हुआ है कि वो सेमी सर्कल है। ओके, सो कैसे करोगे? लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, area of shaded portion should be equals to what? That is area of rectangle minus area of what? Minus area of semicircle. So what is the area of rectangle? That is length into breadth minus area of semicircle.
एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालोगे आप? सिंपल, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। सो क्या करूंगा, लेंथ इनटू ब्रेड, लेंथ कितना है 14, ब्रेड कितना है, आई मीन लेंथ है 18, ब्रेड थे 14, माइनस पाई की जगह पर पाई, व्हाट इज आर, सीज। यदि आपने ये इसको मान लिया कि सेमी सर्कल है तो इसका पूरा पार्ट सर्कल होगा, सर्कल का डायमीटर कितना होगा 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 7। तो आप क्या करोगे, पाई इंटू 7 इंटू 7, पाई की जगह पर 22/7 लिख देते हैं, इंटू 2, करेक्ट। लेट्स कैंसिल दिस, 7 टाइम्स कैंसिल, 2 11 टाइम्स कैंसिल, सो फाइनल आंसर कितना आएगा, 11 इंटू 7 इज 77, माइनस नीचे के दोनों टर्म्स कैंसिल हो चुके हैं, 18 इंटू 14 को रफ वर्क में मल्टीप्लाई करते हैं, 32 2 3 4 1 4 3 7 क्रॉस 8 1 2 5 and 2 252. So let's see this, that is 252 minus 77. So what do you think should be the answer? 12 minus 7 comes out as 5, 4 minus 7, that is 14 minus 7 is 7, and then it's 1. So it is 175 centimeter square. So this would be the answer for your question number 1. Let's move on to question number 2. Now since board पे जगह बची हुई है तो we'll first of all solve questions and then we'll rub the board. Find the area of the shaded region. Again आपको एक सर्कल दिखाई दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम है, सर्कल के अंदर आपको रेडियस नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि सर्कल का रेडियस इन्होंने बना के दिया ही नहीं है, बट आपको मालूम है, एंड दिस इज द बाय द वे व्हाट, दिस इज अ रेक्टेंगल वंस अगेन। सो मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या करा, डायगोनली ज्वाइन कर दिया। यदि डायगोनल ज्वाइन करूंगा तो जो भी इसका सेंटर होगा, दिस पर्टिकुलर सेंटर वुड बी व्हाट, द सेंटर ऑफ द सर्कल, करेक्ट। तो ये आपके पास बन चुका है। अब यदि ये बन गया, नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स पीस ऑफ केक गाइस। कैसे निकालोगे? सो पहले मैं लिखूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आप बोलोगे सर आपने कैसे मान लिया कि ये आपको दे करके रखा हुआ था? एक्चुअली एज आई टोल्ड यू, बुक में पूरा डायग्राम सब कुछ दिया हुआ था, बट द क्वेश्चन वाज प्रीटी बिग, तो ये एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आधे पेज का था, सो आई जस्ट ट्रिम्ड इट डाउन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन should be equals to, कितना हो जाएगा, that is area of circle minus area of what, rectangle। कैसे करोगे? एरिया ऑफ द सर्कल तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बट आर तो दिया ही नहीं है। तो यदि आप देखोगे तो आई एम यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लेट अस से सपोज मैंने इसको मान लिया ए एंड बी, सो दैट मीन्स व्हाट, और इसको मैंने मान लिया सी। इन द ट्राइंगल एबीसी in triangle ABC, okay, that is AB square should be equals to BC square plus AC square, correct? So AB square should be equals to BC square plus AC square. Now यदि AB है आपके पास में, तो you need to find out AB and it should be equals to what, under root of BC square। BC square कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, and what is AC का स्क्वायर, that is 5, 5 का स्क्वायर is 25। so AB should be equals to under root of 169। so 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स माइनस देंगे नहीं बिकॉज डिस्टेंसेस के अंदर माइनस नहीं आता। so AB equals to 13, if AB equals to 13, so OA should be equals to, OA should be equals to OB should be equals to radius should be equals to what, 13/2 centimeter, correct? So now let's use it. Or what is pi, that is 22/7 into what is R, R is that is 13/2, correct?
So it should be 13 by 2 into 13 by 2 r square minus, what is length into breadth? 12 into 5 comes out as 60. Let's cut this. 2 ones are 2. 2 times of 11. So this should be what? That is 13 into 13 is 169 into 11. 169 into 11 by 7 into 2 comes out as 14. Correct? Minus 12 into 5 is what? 60. So let's multiply 169 into 11. So let's do it somewhere over here. So it's 169 into 11. So that is 1690 plus 169 again. So let's do it. 961. 961. So that is 9, 5, 8 and 1. 1859. Okay. So it should be 1859 minus 60 upon 14, or it should be equals to 1859 minus 14 into 6 times. So 13 5s are 65. So of course 14 5s is 70 and 14 6s is 84. So 14 6s is 84. So that will be 840 by what? 14. So let's subtract this. So 9 is 9, 5 minus 4 1, 8 minus 8 0. So it is 1019 by 14. अब डिवाइड कर दोगे जो भी कोई डेसिमल में आंसर आ रहा होगा, that's going to be the answer. So किया क्या हम लोगों ने? Area of the shaded region is pi r square minus area of this rectangle. Okay. So वो आ जाएगा आपका shaded region वाला part. Area of the circle pi r square minus length into breadth should be equal to this. Correct? Let's move on to the next question, that is question number 3. Now what does the question number 3 says? Question number 3 says the perimeter of a sector of a circle of radius 5.6 centimeter. आपका एक कोई सेक्टर देके रखा है सर्कल का, उसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 27.2 और द रेडियस इज ऑलरेडी गिवन एज 5.6. सो लेट्स मूव ऑन थर्ड. सो लेट्स राइट गिवन. गाइस मैंने पिछले 2 क्वेश्चंस में गिवन नहीं लिखा था, यू नीड टू ऑलवेज राइट गिवन. सो गिवन पेरीमीटर. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ द sector of a circle? So let's that is r plus length of the arc. So it is going to be 2r plus length of the arc. So that is 2r plus what is the length of the arc? It is 2 pi r. 2 pi r what? 2 pi r into theta upon 360. Correct? So they are saying the perimeter of a sector of a circle of radius 5.6 is 27.2. Okay. आपको गिवन r आपको दे करके रखा हुआ है as 5.6 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, और पेरीमीटर आपको दे करके रखा हुआ है कितना? दैट इज 27.2 सेंटीमीटर. व्हाट डू यू नीड टू फाइंड इट आउट? यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर. एंड व्हाट डू यू थिंक एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? That is very simple. It should be theta upon 360 into pi r square. Correct? So यदि आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पर भी theta upon 360 है और यहाँ पर भी आपके पास में 2 pi r है, बट यहाँ पर साथ में 2r और है. So let's first of all start putting down the values. So perimeter की जगह पर कितना दिया हुआ है? 27.2. Correct? 27.2. And it should be equals to, what is 2r? What is 2r? 2 into 5.6 and plus length of the arc. So what is the length of the arc? That is theta upon 360 into theta upon 360 into 2 pi r. इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक भी है, so I'll just tell you right now. So ये वाला पार्ट हो चुका आपके पास में. So 27.2 should be equals to 2r plus theta upon 360 into 2 pi r. Right? So यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पर लेके आता हूँ. So 27.2
minus 2 6 are 12, carry 1 2 5 are 10 and 11, so it is 11.2 should be equals to theta upon 360 into what? 2 pi r. Correct? So 27.2 minus 11.2 should be equals to theta upon 360 into 2 pi r. So 2 minus 2 would come out as what? 0. So that means that 7 minus 1 comes out as 6 and 2 minus 1 is 1, 16. So 16 should be equals to theta upon 360 into 2 pi, and what is r? R is 5.6. ना मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं केवल ये 2 पाई या केवल ये पाई थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाल रहा हूं, सो दैट पाई थीटा अपॉन 360 एंड आर भी है मेरे पास में. सो कैन आई पुट दिस वैल्यू डायरेक्टली ओवर हियर. सो लेट्स सी, 16 यहां पर है आपके पास में, थीटा अपॉन 360, इनफैक्ट इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं. लेट अस सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. करेक्ट. फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. करेक्ट. इसका मतलब है थीटा अपॉन 360 की जगह पर अपन वैल्यू डाल सकते हैं ना कुछ. सो लेट्स, और थीटा अपॉन 360, इनफैक्ट पाई आर की जगह पर भी वैल्यू डाल सकते हैं. इनटू पाई आर को मैंने यहीं पर ही ऐसे ही छोड़ दिया, शुड बी इक्वल्स टू, पाई आर को यहां छोड़ूंगा तो 2 वहां पर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 16 से, तो इट विल बिकम व्हाट? 8. थीटा अपॉन 360 को यहीं छोड़ दिया, पाई आर को भी यहीं छोड़ दिया, तो इट शुड बी इक्वल्स टू 2 वहां पर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 8. सो लेट्स पुट दिस वैल्यू. ओके, सो मैंने इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया. कैसे कर रहा हूं ये देखो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर गया तो यहां पर कितना आ जाएगा? 8 इंटू, लेकिन एक आर बचेगा. सो व्हाट इज आर? आर वॉज योर्स 5.6. 8 इंटू 5.6. सो 8 6 is 48. 4 8 for the 40 and 4 44. So answer is what? 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर? बिकॉज एरिया है. सो इसका मतलब क्या हुआ? इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है. यू कैन कीप ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इनटू द इक्वेशन टू गेट योर शॉर्टेड आंसर. सो दैट्स योर आंसर, 44.8. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. So now what does the question number 4 says? A chord of a circle of radius 14 centimeter. Okay. A chord of a circle of radius 14 centimeter. So this is given to you as 14 and this is also given to you as 14 because radius होगा. Makes a right angle at the center. और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्रीज का, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल. फाइंड द एरियाज ऑफ द माइनर एंड द मेजर सेगमेंट. पहले आपको यहाँ पे नाम दे देते हैं O A B. इन्होंने बोला है आपको एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट भी निकालना है. ओके, नो प्रॉब्लम. अब क्या करोगे? माइनर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ व्हाट? ट्रायंगल. करेक्ट. सो एरिया ऑफ द, यदि मेरे को माइनर सेगमेंट निकालना होगा, माइनर का मतलब क्या हो जाएगा? ये नीचे वाला सेक्शन. तो कैसे निकालूंगा? एरिया ऑफ द सेक्टर इज थीटा अपॉन 360, मतलब 90 अपॉन 360. अच्छा, पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूं आपके लिए. सो दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल. क्या था एरिया ऑफ द ट्राइंगल? सो आप ये भी लिख सकते हो हाफ इंटू बेस, बेस की जगह पर AB इंटू हाइट. And what is the height? That is
height is. So half into base you can write it as OA into OB. Correct. Now let's see. So theta की जगह पर 90 upon 360. Again I have not written given, guys. You need to write given. So 90 upon 360 into what is this? So pi is pi into r square. What is r? That is 14 का square minus 1 upon 2 into OA into OB. What is OA into OB? 14 into 14. That means 14 का square. दोनों में 14 का स्क्वायर है. कैन आई टेक आउट कॉमन आउटसाइड? सो 0 0 कैंसिल. 9 1 9 9 4 36. सो इट विल बी कितना हो जाएगा? दैट इज 14 का स्क्वायर. यदि मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा? पाई अपॉन 4 माइनस 14 स्क्वायर इज आउटसाइड. दैट इज 1 अपॉन 2. करेक्ट. और इट शुड बी इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर कितना आएगा? 196 इनटू एलसीएम ले लूंगा तो यहां पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा पाई माइनस 2 टाइम्स इज 2, 4 1 टाइम्स 4 4 16, 3 36, 4 9 so it should be equals to 49 ब्रैकेट पाई माइनस 2. पाई की जगह पर वैल्यू डाल देता हूँ 3.14. यू कैन पुट एनी ऑफ द वैल्यू ऑफ 22/7 भी डाल सकते हो. माइनस 2, बल्कि 22/7 ही डाल देते हैं, वो कैंसिल भी हो जाएगा. So 22/7 minus 2, 49 in bracket LCM is 7, तो यहाँ पर आएगा 22 minus 7 2 is 14. 7 times 1, 7 times 7, so answer आएगा 7 into 22 minus 14. 12 minus 4 is what? 8. Correct? So 8 into 7 is what? 56. So answer is what? That is 56. एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि एरिया पूछा है तो 56 आ जाएगा. करेक्ट. अब उन्होंने बोला है मेजर सेगमेंट का भी निकालो. तो मेजर सेगमेंट सिंपल कैसे करोगे? मेजर सेगमेंट का मतलब इसका एरिया. करेक्ट. हाउ विल यू फाइंड इट आउट? वेरी सिंपल. आपने अभी जहां पर एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल किया था, तो आप इस बार क्या करोगे? थीटा के जगह पर अब बस वैल्यू चेंज कर देना. 360 माइनस 90 कर देना. आपको उतना भी समझ में नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम. अब क्या करोगे? एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल देना अगेन साइड. दैट्स ऑल. सो इन सिंपल वर्ड गाइस, दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर टू बी डन. नाउ टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? टुमारो वी आर गोइंग टू टेक सम फ्यू मोर प्रॉब्लम्स एंड देन टुमारो वी आर गोइंग टू एंड अप दिस चैप्टर. तो कल मैं आपको मेजर, माइनर, सेगमेंट, हाफ आर स्क्वायर, साइन थीटा, everything I'm going to complete this. Okay. Thank you guys so much once again for watching. Enjoy, cheers, and love your parents and keep smiling always. Bye.